Okay, so good morning, everyone. Welcome back to the class. Good morning, class. Yes, am I audible? Yes, ma'am. So you didn't reply, no? Okay. So what we have to study in today's class is, see, in the last class we have seen window to viewport transformation, and in that we have find out the normalized point. कि if we see any point in the world coordinate, ठीक है, और उसी पॉइंट को अगर हम मैप कराते हैं व्यू पोर्ट पे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने एक्स बी और वाई बी की वैल्यू निकाली थी। इसमें किसी को कोई डाउट है? विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज अ विंडो, व्हाट इज अ व्यू पोर्ट, हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म अ विंडो टू अ व्यू पोर्ट? See, we will if you want I can do the topic again. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उस टॉपिक को, ठीक है? So let you all join first. आज हम क्लास में क्या करेंगे? इन टुडेज क्लास व्हाट इज आवर एजेंडा इज वी आर रिवाइजिंग 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्विकली। सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को फटाफट रिवाइज कर लेंगे सो दैट आपका वो एकदम टॉपिक प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? देन आपकी जो क्लिपिंग एल्गोरिथम्स है और विंडो टू व्यू को, ये आपके टॉपिक्स रह जाते हैं। यूनिट 2 का एमसीक्यू आई विल बी टेकिंग द एमसीक्यू। आज क्या डेट है? 15 and today is Wednesday. Let me plan it for Friday. Friday ले लूं? मंडे मैम। पढ़ के देते हो तुम कि ऐसे ही देते हो? मंडे तो बोल देते हो। पढ़ के देते हैं मैम, मंडे को ही लेना। मंडे को ले लूं, बट यू हैव टू स्टडी थॉरली, ठीक है? आई नो कि आप लोग कैसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो, बट अगर पढ़ के दोगे तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है? सो on your request I will be taking the MCQ2 on 20th 20 सितंबर को, ठीक है? Is it okay to you all? यस मैम। चलो अब just take out one notebook and one pen, ठीक है? फटाफट मेरे साथ फटाफट रिवीजन करते जाओ। हेडिंग डालो 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में यू फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट नीड टू नो दैट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मनीष? क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? Transformation is a process of repositioning or reshaping, ठीक है? The or we can say we want to change the orientation, we want to change the size, the position of an object, ठीक है? वो हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स, ठीक है? And how can we achieve the orientation? How can we achieve transformation? Transformation can be achieved by the basic techniques of applying translation, rotation, then shearing and then reflection, ठीक है? ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हमने पढ़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या होता है? हाँ जी सरिता, टेल मी व्हाट इज ट्रांसलेशन? What is translation, Sarita? You able to hear me? Yes, ma'am. क्या होता है ट्रांसलेशन, बोलो। What is the meaning of translation? जल्दी बताओ। You don't know the answer? Yes or no? Do you know the answer or not?
Mohit, do you want to tell what is translation? Yeah, this is seriously very disappointing. Prem, what is translation? Prem Srivastav, I'm asking what is translation? You're not audible. चलो मुझे ही बताना पड़ेगा. You people don't want to respond, I think. कोई बोलेगा? Someone wants to answer? दीपक, क्या होता है ट्रांसलेशन? Rule number 9. मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो. So in computer graphics, you can define translation as the process of moving an object from one place to another place. ठीक है, तो उसके लिए you require translation factors. अगर आपका coordinate system में you have a object like a square or any triangle or a point. यहाँ पे देखो इस diagram में this is your coordinate system and here this is a point जिसके coordinates क्या है x old, y old. Now you have moved this point to this position. Now it has a new coordinate which we called as x new, y new. So आपने इसको इसमें क्या add किया या क्या subtract किया जो ये यहाँ पहुँच गया. तो उसके लिए you need to determine the translation factors. This is translation factor tx in x direction and this is the translation factor ty in y direction. इसके लिए आपने equation क्या derive की थी? The equation is x dash, that is x new, is equals to x old plus tx and y new is equals to y old plus ty. यही हमने derive किया था. अब इसको हम matrix form में कैसे लिख सकते हैं? How we can write the particular thing in matrix form? This is the matrix notation. Matrix notation क्या है? X new, y new equals to x old, y old, ठीक है? Plus tx, ty. Now अगर आपके पास कोई भी numerical आता है, अगर वो simple translation का numerical है, that if it is given to you कि आपके पास एक triangle है, उसके coordinates है ABC की value given है, ठीक है? और tx और ty given है, तो what you have to do? अपने triangle के points को लिखोगे. जैसे यहाँ ये हो गया A के कोऑर्डिनेट्स, सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में B के कोऑर्डिनेट्स एंड नेक्स्ट कॉलम में C के कोऑर्डिनेट्स. उसमें फिर आप हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ Tx को ऐड कर दोगे और हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ Y के साथ Ty को ऐड कर दोगे, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट, दैट इज द न्यू ट्रायंगल जिसको आपने मूव कराया था. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का एक न्यूमेरिकल इस वर्कशीट में गिवन है. दिस इज अ बेसिक न्यूमेरिकल, ये वाला देखो. अच्छा, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लिखेंगे तो यू ऑल हैव टू रिमेंबर द होमोजेनियस मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन. जस्ट राइट इट डाउन अगेन. आप एक पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो. दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अच्छा, जब भी आप होमोजेनियस की बात करोगे तो होमोजेनियस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. दिस इज योर टी मल्टीप्लाई एक्स. ठीक है, x dash equals to t. T stand for transformation matrix for translation and this is your x which is the object matrix for the old object matrix. ठीक है, तो ये इसकी homogeneous coordinates में अगर हम लिखेंगे तो हम एक identity matrix लिखेंगे जिसमें all the diagonal elements are 1. यहाँ पर आपने tx ty लिखा है. Now, who will tell me what are homogeneous coordinates? What are homogeneous coordinates? What is the significance of homogeneous coordinates? Manish, number 23, do you want to answer? What is the significance of homogeneous coordinates? Why do we use them? किसी को नहीं पता है? And why the attendance is so low?
इतने कम बच्चे क्यों आते हैं तुम लोगों की क्लास में, मुझे समझ नहीं आता। इससे पहले क्लास में कितने थे? पीसीएन की क्लास हुई है ना, या अभी तो होगी? इससे पहले क्लास किसकी थी? उसकी थी जावा की। कितने बच्चे थे जावा की क्लास में? इतने ही थे मैम, 10 थे शायद, कम ही है आज। आज कम क्यों है बच्चे? वैसे तो इतने ही रहते हैं, यही परमानेंट बच्चे हैं। पता नहीं मैम। अच्छा बताओ, चलो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? नहीं पता है? मैम हम 2-2 मैट्रिक्स को 3-3 में कंबाइन करते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास 2-2 मैट्रिक्स होता है ना, तो उसको हम कंबाइन करते हैं 3x3 में मैट्रिक्स में। देखो ध्यान से सुनो सब लोग, यू आर समवेयर करेक्ट, but you need to explain it properly. Homogeneous coordinates, basically this question has 100% probability to be asked. ठीक है, what is the significance of homogeneous coordinates or what are homogeneous coordinates? Basically in computer graphics, when we are working with composite transformation. Composite transformation का क्या मतलब है? You are carrying out more than one transformation. मतलब आप, let's suppose you are doing translation and then you are doing scaling and then you are doing the retranslation, or let's suppose you are doing rotation then reflection. तो उस केस में it is easier to work with 3x3 matrices. ठीक है, instead of 2-dimensional matrices हम 2x2 matrix को 3x3 matrix में convert करते हैं, and this can be done by adding a dummy column और a dummy row. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हमारे x के कोऑर्डिनेट्स थे उसमें in order to convert it into 3x1 matrix, इसको हमने एक डमी एलिमेंट दे दिया 1. ठीक है, बिकॉज 1 से मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन इट एज 1. तो यहाँ पर अगर जब आप रीड करोगे इसकी डेफिनेशन, दैट व्हाट आर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, लेट मी टेक यू टू द होमोजेनियस पॉइंट जहाँ पर मैंने समझाया है व्हाट आर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स. हाँ ये देखो, so just read out the line here. The rotation of a point, straight line or an entire image on the screen about a point other than origin is achieved. कैसे अचीव होता है rotation of a point? कि by first moving the image until the point of the rotation occupies at the origin. That means you have to do the translation, then you perform the rotation, and then you finally move the image to its original position. ठीक है, now moving of an image from one place to another is called translation. And translation कैसे होता है? By adding or subtracting. ठीक है, translation of a point by change, ये इतनी ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, basically what you have to write is homogeneous coordinates are generally used in design and the construction application. Okay, बेसिकली देखो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, मैं इस वाले उसको चेंज कर दूंगी कंटेंट को. ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड कंटेंट, इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट कि जब व्हेन वी आर कैरिंग आउट कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जब हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें हमारा इजियर होता है वर्क करना. फॉर 2 ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वी चूज होमोजेनियस पैरामीटर h to any non-zero value. वो non-zero value क्या होती है? 1. तो हमने अपनी 2-dimensional पोजीशन जो थी ना x, y, उसको कन्वर्ट कर दिया होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में, दैट इज x, y, 1. ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट एवरी मैट्रिक्स इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट. जैसे ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है ये वाला, देखो मैंने ये वाला कराया आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे tx ty. सिमिलरली स्केलिंग के लिए यू हैव टू रिमेंबर this is sx00, 0 sy0, 001. This is your scaling matrix. Now for rotation in clockwise, my homogeneous matrix is cos theta sin theta minus sin theta cos theta 0 0 0 0 1. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि I have, there is, ये दोनों आपस में अपोजिट है. ठीक है, तो ये होते हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट. मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको दे दूंगी जब मैं ये अभी पोस्ट करने वाली हूँ. ठीक है,
what is my purpose of revising the entire thing in today's classes, so that एक बार आपको ये थोड़ा clear हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये देखो एक न्यूमेरिकल है, फटाफट लिखो कि you have given a circle with radius 10 and उसके जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है 1,4. अप्लाई द ट्रांसलेशन विद डिस्टेंस 5 in x डायरेक्शन एंड 1 in y डायरेक्शन. हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन वाज कि आपको रेडियस गिवन है 10 और सेंटर के पॉइंट गिवन है 1,4. अब आपको करना क्या है, tx और ty गिवन है. ऑब्टेन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ c विदाउट चेंजिंग इस रेडियस. तो करना क्या है, आपको ट्रांसलेशन करना है. ट्रांसलेशन ओरिजिनल सेंटर के पॉइंट्स कितने हैं 1,4. तो इसी में आप ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है ना? तो उसमें आप tx ty ऐड कर दोगे. आपका x ओल्ड और y ओल्ड कितना है 1 और 4. तो यहाँ पर देखो यू विल राइट 1 एंड हेयर 4, ठीक है? प्लस tx ty is given to you that 5 and 1. x डायरेक्शन में 5 है और 1 y डायरेक्शन में it is 1. Now the resultant x new and y new will be 6,5. ठीक है? अब ये तो आपका सिंपल आप काम कर रहे हो, कौन से कोऑर्डिनेट में काम हो रहा है, 2 डायमेंशनल में काम हो रहा है, ठीक है? इसी सेम चीज को यू कैन वर्क इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट आल्सो. होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में कैसे काम करोगे, इसमें आप इस वाले मैट्रिक्स को होमोजीनियस में लिख दो. होमोजीनियस में लिखने के लिए एक चीज का ध्यान रखो, दैट इज ऑलवेज यू हैव टू डू x डैश इज इक्वल्स टू t पहले आता है लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई x, ठीक है? और यहाँ पर x कितना है आपका, x is your 1, 4 and 1. 1 is the last dummy variable जो आपने डाला है, ठीक है? और tx कितना है आपका, यहाँ पर tx is 1, 0 और 1, 0, 1. अच्छा ये 1 नहीं है, दिस इज 5. कुछ खुद बोलते नहीं हो, यू आर नॉट लिसनिंग ना. मैम आई एम लिसनिंग. बस एक ही जना लिसन कर रहा है. ये साथ साथ लिख लो, मैं होमोजीनियस में सॉल्व करके दिखा रही हूँ. ये आपका t है, दैट इज 1, 0 tx, 0, 1 ty, 0, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4, 1. अब इसको मल्टीप्लाई करो, जरा बताओ क्या आंसर आ रहा है. 1, 1, 1. सिक्स 5, 1. हाँ 6, 5, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिखोगे, हाँ नीचे 1 लिखोगे, ठीक है? तो दिस इज द वे यू हैव टू. और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल है ना, सब में एक ही मेथड अप्लाई करो. डू नॉट गो विद डिफरेंट मेथड्स. अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विथ होमोजीनियस मेथड कि आप हर एक मैट्रिक्स को होमोजीनियस फॉर्म में लिखोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे, देन गो विद दैट. आप अगर अलग अलग बुक देखोगे, अलग अलग वेबसाइट पे जाके देखोगे, या इफ यू गो फॉर नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोस, हर जगह पे अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है. तो यहाँ पे 2D ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है. तो फॉर योर कन्वीनियंस आई एम सेइंग कि जो मेथड मैं बता रही हूँ, आंसर सब में सेम आना चाहिए. इफ यू आर अप्लाइंग विच एवर मेथड, बट आंसर शुड बी सेम. तो ये चीज़ मैं बोलती हूँ कि आप लोग होमोजीनियस के साथ ही काम करो.
ठीक है, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो उसके लिए होमोजीनियस ही परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने होमोजीनियस के साथ सॉल्व करके दिखा दिया, दैट इज x डैश इज इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई x, t is the translation matrix and x is the object matrix, and this is the translation matrix and object matrix, and when you multiply them you'll get the new coordinate as x 6 5 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। नाउ आफ्टर ट्रांसलेशन ये डायग्राम भी बना हुआ है कि ये आपका सर्कल था, ये उसके सेंटर के पॉइंट थे 1,5। अब इस पॉइंट को आपने बढ़ा दिया और बढ़ा के कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पे। देखो सर्कल में के साइज में कोई चेंज नहीं आया है, कैन यू ऑल सी दैट? सर्कल की रेडियस सेम है, व्हाट इज ओनली द डिफरेंस इज योर सर्कल हैज बीन मूव्ड, इट इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन नोट करो एंड यू हैव टू सॉल्व दिस मैम क्वेश्चन। रिपीटेड, मैम फिर से समझा दो। रेडियस सेम नहीं है मतलब लाइक हमारे पास रेडियस वहां पे आई थिंक 4 है मेंशन कर रखा था। देखो इन्होंने क्वेश्चन में भी बोला था कि यू डोंट हैव टू चेंज द रेडियस, ठीक है, मतलब कि सर्कल के मैम। साइज के साथ कुछ नहीं करना है, यू ओनली हैव टू वर्क विद द पोजीशन ऑफ द सर्कल, दैट मींस आपको सर्कल की पोजीशन चेंज करनी है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। तो सेंटर के पॉइंट कितना दे रखा है, 1 और 4, 1,4। हमने यही 1 में क्या ऐड कर दिया, 1 इज द हॉरिजॉन्टल वैल्यू ना, तो 1 में हमने क्या ऐड किया था, हमारे को क्या ऐड करना था, 5 ऐड करना था ना, तो 1 में हमने 5 ऐड किया तो हम 6 पे पहुंच गए, और 4 में हमने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया। 5,1 था ना, x डायरेक्शन में 5 था और y डायरेक्शन में 1 था, तो यहाँ पर हमने y में 1 ऐड किया तो हम यहाँ पे पहुंच गए। तो सर्कल की जो रेडियस थी दैट वाज जो भी गिवन थी रेडियस, हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ मूवमेंट किया है सर्कल के सेंटर की पोजीशन में। तो सर्कल के सेंटर की पोजीशन को हमने 6,5 कर दिया, तो बेसिकली सर्कल हैज रीच टू अ न्यू पोजीशन हियर, nothing has been changed in the size of the circle, that means the radius of the circle is exactly the same because हमने उसमें कुछ changes ही नहीं किए, हमने changes क्या किए सर्कल के center position पे, that means we have moved the circle, उठा के हमने उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया बस। Is it clear? यस मैम। हाँ जी, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको कुछ क्लियर हो रहा है? विकास आज भी नहीं आया ना, उसको उसने ट्रांसलेशन मिस किया था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर होता तो अटेंड कर लेता। यस कुणाल, आप तो यू पता नहीं हाउ यू अटेंडिंग द क्लासेस, आई जस्ट डोंट नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल सॉरी ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यू हैव टू अप्लाई द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अप्लाई करना है, और tx is given 1 and ty is given 1, you have to find out the new coordinates। सिंपली इसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखो, tx और ty आपको पता है, न्यू कोऑर्डिनेट निकाल लो फटाफट, कर लोगे इसको? कैन यू ऑल डू दैट, दिस क्वेश्चन जस्ट नोट इट डाउन। एक मैम कर रहे हैं। अपनी रफ साइड में फटाफट एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, स्क्वायर के पॉइंट्स लिखो, बिलो पॉइंट 0,3, राइट हैंड साइड में 3,3। देखो एक चीज का ध्यान रखो, जब आप स्क्वायर बनाओगे तो पॉइंट्स को जो पुट करोगे, जैसे कि आपने स्क्वायर बनाया, तो अगर ये आपका 0,3 है, एक मिनट, एक तो ये ना सब ड्रॉ होता नहीं है। जीरो कॉमा थ्री का मतलब क्या है कि आपका जो स्क्वायर है वो ओरिजिन पे है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये 0,3 अगर मान लिया हमने, तो b 3,3 है, c 3,0 है और d 0,0 है। तो इसको बोलो, ये लेट्स सपोज दिस इज योर पॉइंट d,
ठीक है, ये आपका पॉइंट डी है, क्योंकि 0,0 डी पॉइंट आपका ओरिजिन पे है ना। मैं पेंसिल कहाँ से लूँ यहाँ पर? और वैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू डोंट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, बट अगर आप डायग्राम अगर ड्रॉ करना सीख जाओगे ना, तो कभी मिस्टेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। तो ये डी है 0,0, ठीक है। ये है आपका सी। सी कैसे है? बिकॉज ये आपका 3,0 है। 3,0 ये वाला पॉइंट है, दिस इज 0,0, दिस इज बी 3,3 and this is A, that is 0,3. Is it clear? ये पॉइंट्स समझ में आ गए कैसे आए हैं? क्योंकि A की वैल्यू 0,3 थी, तो 0,3 वैल्यू यही होगी 0,3। अब इसको आप लिख लो मैट्रिक्स की फॉर्म में। कैन यू ऑल राइट इट डाउन इन मैट्रिक्स फॉर्म? मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे? 0, 3, 3, 3, 3, 0। सब नोट कर रहे हैं? 0, 0। यस मैम। और लास्ट रो क्या होगी आपकी? डमी रो विच इज 1। तो लास्ट रो आपकी डमी रो हो गई 1। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का मैट्रिक्स हो गया। और टी क्या है आपका? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की वैल्यू क्या गिवन है? 1, 1, दोनों 1, 1 गिवन है। तो उसको आप कैसे लिख? 1,1। हाँ, तो वो कैसे होगा? पहले तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1। दिस इज योर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। हाउ? ये वाली वैल्यू tx होती है, ये वाली वैल्यू ty होती है। मैम लास्ट में 0। क्यों? मैम सेकेंड रो का लास्ट थर्ड कॉलम में 1 आएगा। तो tx ty 1, 1 गिवन है ना आपको। tx और ty 1, 1 गिवन है। यहाँ पे tx होता है, यहाँ पे ty होता है, तो दोनों 1, 1 पुट करोगे और बाकी डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं। अब देखो ना ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को। लेट मी शो यू अगेन। यस मैम, यस मैम। क्लियर हो गया? मैम वो एक बार वो दिखा दो पहले आप, मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाला दिखा दो। जो। ये देखो, द सी है 1, 1, 1। तो 1, 1, 1 tx और ty की जगह पे 1, 1 पुट कर दिया, तो मेरा ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यस मैम, समझ गया। तो ये आपका tx है। अब आपको करना क्या है? दिस दिस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इज नीड टू बी मल्टीप्लाइड। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? इससे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, t को x से मल्टीप्लाई करना है, x को t से मल्टीप्लाई नहीं करना है। नहीं, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो इससे गलत हो जाता है। तो ऑलवेज जो x डैश होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो t इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन विच इज दिस, एंड x क्या है? ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। लेट मी प्रोसीड। आगे बढ़ू। सब लोगों को समझ में आ रहा है? सब नोट डाउन कर रहे हैं? अमन, यू आर डूइंग इट। दीपक, रोहित कुमार। यस मैम। रोहित, आप क्लासेस बहुत कम ले रहे हो। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज स्केलिंग। स्केलिंग का मैट्रिक्स जल्दी से देखो। स्केलिंग में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलिंग? स्केलिंग मीन्स वी आर चेंजिंग द साइज। ईदर वी आर स्केलिंग द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वी आर स्केलिंग अप, we are increasing the size of the object, or we are scaling down, that means we are doing the compression. So this is the meaning of scaling.
अब स्केलिंग का मैट्रिक्स कैसे होता है? स्केलिंग में हम हमेशा ध्यान रखो, ट्रांसलेशन में हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? मतलब या तो हम उसको आगे मूव करना है या पीछे मूव करना है, तो उसके लिए ऐड सब्ट्रैक्ट से काम चल जाएगा। पर जब हम बात कर रहे हैं स्केलिंग की, तो स्केलिंग का मतलब क्या है? वी आर increasing the size which can be done by multiplying the object twice या thrice, जो भी given है हमें, ठीक है? तो स्केलिंग में हम क्या करते हैं? we are modifying or altering the size of object, ठीक है? अगर हमारी स्केलिंग की वैल्यू, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट साइज इज इंक्रीज्ड। इफ द स्केलिंग फैक्टर इज लेस देन 1, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट साइज इज रिड्यूस्ड, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, हमारे पास दो तरीके की स्केलिंग पड़ी थी। दिस इज अ नॉर्मल स्केलिंग, जिसका आपका मैट्रिक्स क्या होता है? एक्स न्यू इज इक्वल्स टू एक्स ओल्ड मल्टीप्लाई एस एक्स एंड वाई न्यू इज इक्वल्स टू वाई ओल्ड मल्टीप्लाई एस वाई। अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू एक्स न्यू वाई न्यू इक्वल्स टू एस एक्स 0 मैम एस वाई। हाँ जी, वो एस एक्स क्या है मैम? ये एस एक्स इज अ स्केलिंग फैक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जैसे टी एक्स था ना, दैट इज अ ट्रांसलेशन फैक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ट्रांसलेशन फैक्टर इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली कि आप एक्स कोऑर्डिनेट को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका साइज बढ़ा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एस एक्स। अगर मैंने बोला मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट टू ट्वाइस इट्स साइज, इसका मतलब क्या है कि एस एक्स क्या हो गया? 2 और एस वाई भी क्या हो गया? 2। अगर लिखा हुआ है मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट ट्वाइस इन इट्स साइज इन बोथ द डायरेक्शन, इन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट मीन्स व्हाट? कि आपको उसको दो गुना बढ़ाना है, मैग्नीफाई करना है ट्वाइस। तो एस एक्स और एस वाई दैट आर द स्केलिंग फैक्टर दैट विल बी 2। अगर थ्राइस है तो 2 मतलब 3। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्केलिंग फैक्टर है कि आप उसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो जिससे आपकी साइज में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। हाँ जी, क्लियर हुआ शुभम? यस मैम। तो इसका मैट्रिक्स याद हो गया है, एस एक्स 0 0 एस वाई। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, आपको करना क्या है? ये देखो, इतना तो आपका था ही, ये वाला तो था ही आपका। आपने क्या किया? 0 0 0 0 1, तो ये होमोजेनियस मैट्रिक्स होता है। दिस इज अ होमोजेनियस मैट्रिक्स। और ये एक्स ओल्ड वाई ओल्ड में आपने डमी वेरिएबल ऐड कर दिया 1, एंड दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट एक्स न्यू वाई न्यू 1। तो आप सबको हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट, यू हैव टू राइट इन 2x2 फॉर्म, ऑल्सो इन 3x3 फॉर्म। स्केलिंग क्या होती है सबको पता होना चाहिए। स्केलिंग पे एक न्यूमेरिकल गिवन है कि वही सेम ट्राइंगल स्क्वायर है, ठीक है? जो स्क्वायर अभी हमने ड्रॉ किया था वही सेम स्क्वायर है। आपको स्केलिंग फैक्टर गिवन है, अप्लाई द स्केलिंग पैरामीटर 2 टुवर्ड्स एस एक्स। तो यहाँ पर आपको एस एक्स कितना गिवन है? एस एक्स इज गिवन एज 2 एंड एस वाई कितना गिवन है? इट इज 3। तो आप मैट्रिक्स लिख सकते हो, यू कैन राइट द मैट्रिक्स एज एस एक्स 0 0 0 3 0 0 0 1। दिस इज योर स्केलिंग। देखो यही वाला बताया था ना मैंने, एस एक्स 0 0 0 एस वाई 0 0 0 1। दिस इज द स्केलिंग मैट्रिक्स एंड यू नो द ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। स्केलिंग मैट्रिक्स को ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स। आई हैव नॉट गिवन द सॉल्यूशन, यू हैव टू डू द सॉल्यूशन ऑन योर ओन, ठीक है? ये क्वेश्चंस है, आप छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब जाके कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। Now this is fixed point scaling. Fixed point scaling मैंने आपको बताई थी, somewhere in the question if it is given let me show you this diagram। जैसे ये देखो, ये आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है? ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यू हैव टू स्केल द ट्राइंगल, दैट मीन्स दिस पॉइंट शुड रिमेन फिक्स्ड। और यहाँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यू हैव टू ईदर इंक्रीज द ट्राइंगल और यू हैव टू डिक्रीज द साइज ऑफ द ट्राइंगल। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग। तो फिक्स पॉइंट स्केलिंग आप कैसे करते हो? यू हैव टू कीप दिस पॉइंट एज फिक्स्ड। तो उसके लिए क्या करोगे? पहले उस ट्राइंगल को मूव करो, ट्रांसलेशन, ट्राइंगल को मूव करो कहाँ पे? ओरिजिन पे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज
translate the whole object such that the fixed point coincide with the origin. तो आप इसको उठा के क्या कर दोगे, ओरिजिन पे ले आओगे. दैट इज यू हैव टू शिफ्ट, just read the line, you have to write in the same manner. That is, you have to shift each and every vertex of the triangle by the value by the factor xf yf. तो आप करोगे क्या, जो आपकी t की वैल्यू है tx कितना हो जाएगा, नेगेट ऑफ ऑल दिस. ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पता है, सबको पता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होता है. ये आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होता है, बार बार मैं बता रही हूँ. tx और ty की जगह पे क्या पुट कर दोगे, माइनस xf और माइनस yf, जो भी पॉइंट है आपके. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, नाउ यू हैव टू डू द स्केलिंग. अब आपका जो ट्राइंगल है वो ओरिजिन पे आ चुका है, अब आपको स्केलिंग करनी है. तो स्केलिंग आपको वैल्यू गिवन होगी कि आपको x और sy कितना है. तो अगर आपकी वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ छोटा हो गया ना, देख रहे हो, तो इनकी वैल्यू कुछ लेस देन 1 होगी तभी छोटा हो गया है ना. नाउ वी कैन नॉट कीप द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज. अब इसको ओरिजिन पे तो रख नहीं सकते. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव द ट्राइंगल बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू रीट्रांसलेट इट. रीट्रांसलेशन का मतलब क्या है, जो आपके नए tx और ty हो गए वो कितना होगा, पॉजिटिव xf एंड पॉजिटिव yf. तो now the compressed triangle has reached to its original position. तो fixed point scaling में क्या क्या steps हमने perform किए हैं. Yes, what are the steps that we have performed? Rohit, you tell me. What are the steps that we perform in fixed point scaling? जल्दी बोलो रोहित. Are you there in the class? समझ में आया है कि नहीं आया है? प्रेम, आप लोग ऐसे चुप रहते हो ना क्लास में कि टीचर इज कंप्लीटली हेल्पलेस. आई कांट डू एनीथिंग ना, बट आई कैन डू समथिंग. कुछ तो कर ही सकती हो. एंड यू नो व्हाट आई कैन डू. I am only judging your performance with the way how you are interacting in the class. I don't want to judge your performance from the MCQ and an assignment. I know how you submit them. MCQ तो कैसे सबमिट करते हो मुझे पता है, इसलिए सब बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स आते हैं. And this is not the way of judging. For my way of judging is how you are interacting in the class with me. मैम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे. हाँ, क्यों ट्रांसलेट करेंगे? मैम क्योंकि जो हमारे पॉइंट्स थे जो मैम वो कोइंसाइड हो जाएगा शायद, इसलिए तो कुछ So we have to keep the point fixed while doing the scaling, and by keeping a point fixed, हमें सबसे पहले उस point को origin पे लाना है. For that we will subtract the point value with every vertex of the triangle. ठीक है, तो that first step is translation, moving the triangle to the origin. तो उसके लिए tx ty कितने हो जाएंगे, जो आपको वैल्यू गिवन है, जिस पॉइंट से करना है वो पॉइंट की वैल्यू आपकी tx ty हो जाएगी. फिर आपको स्केलिंग गिवन होगी, आप स्केलिंग करोगे, या तो आपको उसको एनलार्ज करना है या कंप्रेस करना है. तो जो भी वैल्यू गिवन होगी फिर उसके बाद से भी ट्रांसलेट कर देंगे, उसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएंगे. तो आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान रखना, हमेशा आप स्टार्ट करते हो राइट टू लेफ्ट, नेवर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखा, ट्रांसलेशन, दैट यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ x एंड y, उसके बाद स्केलिंग, एंड देन द लास्ट इज इनवर्स ट्रांसलेशन, दैट इज यू मूव इट बैक. तो यहाँ से फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड इनवर्स ट्रांसलेशन. अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट. मतलब कि पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको थर्ड वाले मैट्रिक्स से सॉल्व करोगे. दिस इज द वे यू हैव टू वर्क. ठीक है, दीपक मुझे अटेंडेंस भेज देना आप. मैम. हाँ बोलो. मैडम मार्क्स दिखाया आपने असाइनमेंट उसके. क्या बोलो बोलो.